Welcome back. Liennitz theorem for the nth derivative of the product of two functions. This is a part of differential calculus. Differential calculus के अंदर आता है ये Liennitz theorem. We know y is a function of fx. dy by dx equal to f dash x. So if capital D is denoted by d by dx, this is called operator, called differential operator. D अगर हमने डबल डिफरेंशिएशन करना हो तो we will get d square. Y means double derivative of y with respect to x square, which is equal to f double dash x up to d and y equal to dny upon dxn equal to f raised to power nx. If u and v be two functions of x such that u is a function of x, v is a function of x such that uv n, ये जो पाव में n लिखा है that is n time differentiation, which is equal to nc0 un v only. This is v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus up to so on plus ncn uvn. कहने का मतलब दिस इज मोस्ट सिंपल nc0 nc1 nc2 up to so on ncn. This is combinations. So generally combination ncr we know n factorial upon r factorial n minus r factorial होता है, and if we use here nc0 आपके पास 1 आ जाता है तो we will get unv plus nc1 जब सॉल्व करोगे वो भी कुछ वैल्यूज आएगी आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज n आ जाएगा. तो इसी टाइप से यहाँ पे आएगा. तो फिलहाल हम इसको nc1 un माइनस 1 v1 लिखते हैं, nc2 un माइनस 2 v2 प्लस अप टू सोन ncn आपके पास से 1 आ जाएगा uvn. इसको बड़ी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन. एक एग्जांपल कर लेते हैं बेस्ड अपॉन लीबनिट्ज थ्योरम. फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3. इसमें से आप किसी एक को u मान लो, किसी एक को v मान लेंगे. सॉल्यूशन uvn अकॉर्डिंग टू लीबनिट्ज थ्योरम इक्वल टू unv प्लस nc1 अभी भी किया हमने un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस अप टू सोन. यहाँ पर दिस इज़ वेरी क्लियर कि पावर कितनी यहाँ पे 3 है, तो हमें nc3 तक जाना पड़ेगा. तो देयरफॉर u की वैल्यू पुट कर लेते हैं e रेज टू पावर x 2x प्लस 3 रेज टू पावर, यहाँ पर आपके पास 3 है और हम करेंगे n टाइम्स तक जाएंगे. डिफरेंशिएशन हमने n तक की करनी है. un मीन्स दिस. इसकी डिफरेंशिएशन आप जितनी बार भी करोगे, फर्स्ट टाइम करोगे ex आएगा, सेकेंड टाइम करोगे ex आएगा, अप टू सॉन un इक्वल टू ex ही आना है. दैट इज ex. v आपके पास हो 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 है प्लस अब nc1 इज n un माइनस 1 v1 u इज दिस, वही e रेज टू पावर x ही आएगा. v1 मीन्स दिस, इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज 3 टाइम्स 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 derivative of 2x plus 3 that is 2. By using chain rule we get 3 times 2x plus 3 raised to power 2 derivative of that is 2 plus
nc2 n into n minus 1 upon 1 into 2 factorial v2 आपके पास फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन में फिर से आपके पास जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 पहले लिखा जाएगा एंड 2x plus 3 raised to power 1 times 2। तो ओवरऑल वी विल गेट 24 times 2x plus 3 प्लस एक टर्म्स आगे करेंगे nc3 भी आएगा यहाँ nc3 un minus 3 v3 n into n minus 1 n minus 2 upon 1 into 2 into 3 e raised to power x 48 e raised to power x सारे में that is common 2x plus 3 raised to power 3 plus 6n 2x plus 3 square plus 12n n minus 1 2x plus 3 plus 8n into n minus 1 n minus 2. This is the answer. Let us try another example based upon Liennitz theorem. If y equal to sin inverse x का square, show that 1 minus x square times yn plus 2 minus 2n plus 1 into x yn plus 1 minus n square y n equal to 0. So solution. Given y equal to sin inverse x raised to power 2, differentiating we get y1 करेंगे डिफरेंशिएशन को y1 means dy by dx। तो ये आ जाएगा 2 sin inverse x into differentiation of sin inverse x, that is 1 upon square root 1 minus x square. We will get 2 sin inverse x upon square root 1 minus x square. We can write here. अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x आपके पास है y, दैट इज equal to 4y. Again differentiating we get 1 minus x square 2y1 y2 means second differentiation plus minus 2x y1 square equal to 4y1। बड़ा आसानी से मिल जाएगा जब आप एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी। तो अब आप देखते हैं 2y1 कॉमन है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस दैट इज माइनस ही कर लेते हैं 2x 2 आपके पास यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट x y1 एक y1 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 और इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 minus x y1 minus 2 equal to 0. Now using Liennitz theorem 1 minus x square yn plus 2 plus n times minus 2x yn plus 1 plus n into n minus 1 upon 2 minus 2 yn minus of x yn plus 1 plus n of 1 yn equal to 0। ये हमें कैसे मिलता है, यहाँ पर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वी कैन सी हेयर। जैसे यहाँ पर इस प्रोडक्ट फंक्शन से क्लियर है,
अगर हम u को y2 माने, v को 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने और लिमनिट्स थ्योरम को यूज करेंगे तो वी विल गेट दिस, दैट इज u इज y2, v इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से ये मिल जाता है। 2 टाइम्स तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन है, n टाइम फिर करेंगे दैट इज n+2, फिर एक कम कम होता रहेगा तो यहाँ पर आपके पास इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। तो इसके बाद आगे की डिफ्रेंशिएशन आएगी और यहाँ तक इसका सिलसिला ब्रेक हो जाएगा। फिर आगे x टाइम्स y1, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 की डिफ्रेंशिएशन है, जिसमें आपके पास दिस इज u, दिस इज v। तो बाय यूजिंग लिमनिट्स थ्योरम वी गेट दिस। सिमिलरली x y1 जब हम यहाँ पे यूज करेंगे लिमनिट्स थ्योरम वी विल गेट दिस, और 2 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो राइट हैंड साइड में 0 विच इज इक्वल टू 0, और इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1 xyn+1 माइनस n स्क्वायर yn इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमने yn एट 0 फाइंड करना है, तो इट erases 2 cases. Number 1 case, when n is odd. Case number 2, when n is even. जब odd होगा इसकी वैल्यू 0 आएगी, when even we get 2 into 2 square into 4 square into 6 square up to so on n minus 2 का स्क्वायर, n is not equal to 2i। तो दिस इज क्वाइट सिंपल टू प्रूव। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इसको प्रूव करने के लिए, yn एट 0 मीन्स नो डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो अगर हम इसमें x को 0 पुट करें इस इक्वेशन में, व्हाट वी गेट 0 आ जाएगा। तो yn+2 यहाँ पे 0, इसको हम लिख सकते हैं नो डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर 0 हो जाएगी टर्म्स, n स्क्वायर yn विच इज इक्वल टू n स्क्वायर yn एट 0 आ जाएगा। हम इस पे निकालना चाहते हैं एट x इक्वल टू 0 पॉइंट, तो ये आ जाएगा। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज yn एट 0 इक्वल टू 1/n स्क्वायर yn+2 एट 0। अब जो yn+2 है, यहाँ पर हमने y1 निकाला था, ये y1 इक्वल टू दिस, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आता है y1, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 दैट इज y1 इक्वल टू 0। जब y2 निकालेंगे, एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन की हमने, तो जो हमने डिफ्रेंशिएशन की यहाँ पर, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास y2 एट 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा, दैट इज 2। इसी टाइप से जब 4 आएगा तो 2 का स्क्वायर, जब आपके पास 6 आएगा दैट इज 4 का स्क्वायर अप टू सोन्स। इस टाइप से आपके पास 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 6 स्क्वायर अप टू सोन्स n-2 का स्क्वायर आता रहेगा, और ऑड केसेस के लिए सारे 0 हो जाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम्स। नंबर 1, रोलीज थ्योरम। इफ नंबर 1 fx इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ab, माना यहाँ से यहाँ तक आपके पास दैट इज ab क्लोज्ड इंटरवल, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट भी इंक्लूड है, कॉल्ड ए क्लोज्ड इंटरवल। नंबर 2, f dash x exists for every value of x belongs to open interval ab, मतलब ab को अगर इंक्लूड ना करें उसके बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उसके लिए f dash x एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर 3, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, मीन्स जो वैल्यू f की यहाँ पर है इस पॉइंट पर, वही वैल्यू अगर यहाँ पर है तो देन देयर एग्जिस्ट एट वन वैल्यू ऑन एनी
point, that let us suppose C point, such that f dash C equal to 0। कहने का मतलब है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्लोप है, C इज ए स्लोप आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस है। तो अब जब आपके पास स्लोप इस टाइप से है, देयर इज नो एंगल मीन्स स्लोप इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट इज x इक्वल टू सी। तो इस तरह से हमारे पास एफ डैश सी इक्वल टू 0 मिलता है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, वेरीफाई रोलिज थ्योरम फॉर this function, that is fx sin x upon e raised to power x in this interval। तो सबसे पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। fx इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी लें, साइन 0 अपॉन e raised to power दैट इज 1, तो हमारे पास f at 0 0 मिलेगा, f at पाई आपके पास 0 मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू सेम। नंबर सेकंड कंडीशन, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लो, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंपल किया, e रेज टू पावर x कॉमन है, cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x। ताकि हम इसको कैंसिल करें, वी विल गेट cos x माइनस साइन x अपॉन e रेज टू पावर x। दिस वेनिशेस ऑन एनी पॉइंट। तो अगर ये वेनिश करेगा तो f डैश x इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज cos x minus sin x upon e raised to power x equals to 0. This implies e raised to power x is there, तो cos x minus sin x equals to 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो we will get sin x को पहले लिख लेते हैं इक्वल टू cos x। दिस implies tangent x, sin upon tangent, जब डिवाइड करेंगे cos से both sides we will get 1। दिस implies x इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा, x इक्वल टू पाई बाय 4। ये पॉइंट आया। अब देखते हैं ये पॉइंट इस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पाई बाई 4 मीन्स 180 अपॉन 4, 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री 0 से लेके 180 तक लाई करेगा। तो 5/4 श्योरली बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इस पॉइंट्स की बात करेंगे, इसको हम सी पॉइंट भी कहते हैं। हैंस रोलिज थ्योरम इज वेरीफाइड। वी कैन राइट हैंस रोलिज थ्योरम इज वेरीफाइड। अब आपके पास है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इफ 1 f(x) is continuous in closed interval AB, number 2 f dash x exists in open interval AB, then there exists at least one value c belongs to open interval AB such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। इसको हम by using रोलिज थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। if phi x को हम माने f of x माइनस f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू एक्स। एफ ऑफ बी ये तो कांस्टेंट ही है, वैसे भी देखा जाए कांस्टेंट वैल्यू है। तो व्हेन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, तो दिस इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन नंबर 1। नंबर 2 दिस इज ऑल्सो ड्राइवेबल एंड phi dash x we get f dash x minus f of b minus f of a upon b minus a। ये कांस्टेंट है, तो phi dash x भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिज थ्योरम। तो देयरफॉर phi of b इक्वल टू phi of a होना चाहिए।
तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर फाई डैश सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एफ डैश सी यहाँ से निकल जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस टाइप से ये बड़ा सिंपल है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करना। अगर डायग्राम से देखना चाहे तो आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम में ए पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पे इस टाइप से है, दैट इज सी इज द स्लोप हियर। इस टाइप से यू कैन जॉइन। तो एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इस टाइप से हम ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट क्लियर कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज दिस, इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास? अगर हम स्लोप निकालें कॉर्ड ए बी का तो वी विल गेट एफ ऑफ बी जो पॉइंट यहाँ पे माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। नंबर थर्ड इज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें आपके पास एक और फंक्शन है जी एक्स, एफ एंड जी बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी। जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तो जब हम अपॉन करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी। देन C belongs to open interval AB such that FB minus FA upon GB minus GA equal to F dash C upon G dash C हो जाता है। जैसे पीछे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में 1 के लिए था, यहाँ पे एक और फंक्शन G आ गया तो इसके लिए डिवाइड करके इस टाइप से आ जाएगा। वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन EX एंड E माइनस एक्स। अभी हमने सिंपल किया, माना एक फंक्शन f आपके पास है e रेज्ड पावर x, another function gx equal to e raised to power minus x। तो f dash x e raised to power x, g dash x minus e raised to power minus x आ गया, e raised to power minus x। तो by Cauchy's mean value theorem we will get f of b minus f of a upon g of b minus g of a equal to f dash C अपॉन जी डैश सी होता है। दिस इम्प्लाइज निकाल देंगे, आपके पास इंटरवल है दैट इज दिस इंटरवल एफ बी माइनस एफ ए। इसमें इंटरवल आपके पास ए बी पॉइंट्स का ही है, तो एफ ऑफ बी यहाँ से निकालेंगे एफ ऑफ बी ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए अपॉन जी, जी में माइनस आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस बी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए which is equal to e raised to power c upon e raised to power minus c। इसको सिंपल करके हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। we will get e raised to power b minus e raised to power a अपॉन ये 1 अपॉन e raised to power b आ जाएगा माइनस 1 अपॉन e raised to power a आ गया, e raised to power c प्लस c, जब आप न्यूमरेटर में लिखोगे दैट इज प्लस c, e raised to power 2c। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे e raised to power b माइनस e raised to power a अपॉन e raised to power a माइनस e raised to power b अपॉन e raised to power प्रोडक्ट a प्लस b आ गए यहाँ पर विच इज इक्वल टू e raised to power 2c। आगे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस जब यहाँ से बाहर करेंगे ये चीज़ सेम आ जाएगी, तो वी विल गेट e raised to power a plus b times e raised to power b minus e raised to power a। नीचे भी माइनस को एडजस्ट हमने यहाँ पे कर दिया, तो वी विल गेट e raised to power b माइनस e raised to power a विच इज इक्वल टू e raised to power 2c। ये कैंसिल हो गए, तो वी विल गेट e की पावर में आपके पास है तो e raised to power a plus b e raised to power 2c। हेयर इज इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे माइनस ही रहेगा बिकॉज जी डैश एक्स इज माइनस हेयर, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो वी विल गेट ई रेज टू पावर ए प्लस बी इक्वल टू ई रेज टू पावर 2c। तो टेकिंग लॉग एंड वी विल गेट a plus c equal to 2c, c equal to half of a plus b।
बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। दिख रहा है, दिस इज मिड पॉइंट a plus b by 2। हैंस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। इस टाइप से हम वेरीफाई कर लेंगे। नंबर 4, टेलर्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। इसको जनरलाइज्ड इसलिए बोला गया है, अब हम एक डेरिवेटिव में नहीं रहेंगे, एक से आगे बढ़ेंगे, नंबर 2, 3, 4 अप टू n-1th डेरिवेटिव तक जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एक स्टेप में nth डेरिवेटिव तक भी किसी फंक्शन को तोड़ेंगे। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज इफ नंबर 1 f(x) and its first n-1th derivative be continuous in closed interval a plus h. Number 2, f and x means nth derivative exist for every x belongs to open interval a plus h, then there is at least one number theta lies between 0 and 1 such that f of a plus h equal to f of a plus h times f dash a plus h square upon 2 factorial f double dash a plus up to so on plus hn upon n factorial f raised to power n a plus theta h। इसका मतलब है जो आपके पास डैश है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, डबल डैश मीन्स सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर लास्ट में n है, दैट इज nth डिफ्रेंशिएशन। तो विच इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर Rn आपके पास है hn अपॉन n फैक्टोरियल fn a प्लस थीटा h। दिस इज लास्ट टर्म। ये आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म है, देयर इज नो नीड टू प्रूव इट। सिंपली आपके पास अगर हम इस टर्म्स को यहाँ तक देखें, व्हाट वी गेट, f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश a। तो यहाँ से इसको इधर किया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इक्वल टू h टाइम्स f डैश a। h को नीचे डिवाइड किया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h विच इज इक्वल टू f डैश a। तो अगर हम लिमिट भी लेना चाहें अब यहाँ पर, लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h अप्रोच टू 0 इक्वल टू f डैश a। व्हाट इज दिस? ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बन गया है। तो इसी से ये चीज़ आगे एक्सटेंड होती है। तो यहाँ तक जब हमने देखा तो सॉल्व करके हमारे पास f डैश एक्स है, f डैश फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन प्रूव होता है। अगर यहाँ तक चले गए तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन प्रूव होगा अप टू सो ऑन। तो देयर इज वन रिमार्क, पुटिंग a इक्वल टू 0 h इक्वल टू x। अगर इसमें पुट करें व्हाट वी गेट, f ऑफ x। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 0 रखी, 0 प्लस h को x रखा तो एफ एक्स आया। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 नेक्स्ट टर्म प्लस x स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एट 0 प्लस अप टू सोन xn अपॉन n फैक्टोरियल f डबल डैश एट थीटा इंटू x आ जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इस सीरीज को, इस सीरीज का एक नाम है दैट इज कॉल्ड मैक्लॉरिन्स थ्योरम या मैक्लॉरिन्स सीरीज विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये निकल आता है आपके पास एफ एक्स। कई बार क्वेश्चन आता है, फाइंड द मैक्लॉरिन्स सीरीज व्हेन फंक्शन इज गिवन। तो सीरीज ये है, फंक्शन गिवन है तो हम f0 निकालेंगे, f डैश 0 निकालेंगे, f डबल डैश 0 निकालेंगे और इसमें पुट कर लेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं विच इज एग्जाम्पल, यूजिंग मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंड टेंजेंट x up to the term containing x raised to power 5, let which is given आपके पास fx equal to tangent x f dash x
इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स विच इज़ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स विच इज़ अगेन 2 टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स यह आ जाता है which is again equal to 2 tangent x plus 2 tangent cube x. Here is हम यहाँ पे ब्रैकेट में करते भी रहेंगे दैट इज f ऑफ 0 आपके पास टेंजेंट 0 दैट इज 0। यहाँ पर भी करेंगे f डैश एट 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पे 0 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज f डबल डैश एट 0 दैट इज 0। तो f triple dash at x. Similarly, we will get 2 secant square x plus 6 times tangent square x secant square x which is equal to 2 times 1 plus tangent square x plus 6 times tangent square x 1 plus tangent square x। थोड़ा सा सॉल्व किया we will get 2 plus 8 tangent square x plus 6 times tangent raised to power 4x। तो यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं f ट्रिपल डैश एट 0 x को 0 पुट करके यहाँ पर we will get 2 आ जाएगा। देख लो ये 0 we will get 2। अब फोर्थ प्लेस पे निकाल लेते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव we will get 16 tangent x secant square x plus 24 tangent cube x secant square x which is equal to 16 tangent x 1 plus tangent square x plus 24 tangent cube x 1 plus tangent square x। secant जहाँ पर है वहाँ पे tangent को कन्वर्ट कर दिया। 16 tangent x plus 40 tangent cube x plus 24 tangent 5x। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं फोर्थ प्लेस पे 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली फिफ्थ प्लेस पे भी आप निकाल ही सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 16 secant square x plus 120 tangent square x secant square x plus 120 टेंजेंट 4x secant square x। यहाँ पे भी निकाल लेते हैं फिफ्थ प्लेस पे दैट इज इक्वल टू 16 आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास 1 होता है बाकी आपके पास सारा 0 हो जाएगा। मैक्लोन सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे जो आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 टेंजेंट ऑफ 0 दैट इज 0 प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश एट 0 आपके पास यहाँ पर है 1 तो 1 आ जाएगा प्लस नेक्स्ट पॉइंट इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सन इस टाइप से आ जाएगा एंड रीअरेंजिंग वी विल गेट एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x5 बाई 15 प्लस अप टू सन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ आपके पास फॉर्मूलेज है जो मैक्लॉरिन सीरीज से निकले। नंबर 1 इज साइन थीटा, वो भी एक्सपेंड करके आपके पास मिलेगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो साइन थीटा मिल गया, साइन हाइपरबोलिक भी मिल जाएगा। साइन हाइपरबोलिक है थीटा, वो आ जाएगा थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस थीटा 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। एक डिफरेंस है हाइपरबोलिक और सिंपल में। हाइपरबोलिक में सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसमें ऑल्टरनेट साइंस रहते हैं प्लस माइनस अप टू सो ऑन। सिमिलरली नंबर 2 cos theta is 1 minus theta square upon 2 factorial plus theta 4 upon 4 factorial minus theta 6 upon 6 factorial plus up to so on infinity तक।
इसी प्रकार हम कॉस हाइपरबोलिक थीटा भी निकाल लेंगे और सारे माइनस के प्लस आ जाएंगे। 1 प्लस थीटा स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस थीटा 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। सिमिलरली टेंजेंट थीटा अभी भी हमने फाइंड किया ऊपर, वो हम निकाल चुके हैं। नंबर 4 ई रेज टू पावर एक्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। नंबर 5 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बी सी से मिला है हमें मैक्लॉरिन सीरीज से, एक्स माइनस x2 बाई 2 प्लस x3 बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। इसी प्रकार लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स भी मिल जाएगा, माइनस पहले लिखेंगे इसमें, बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव आ जाएगी। एक्स स्क्वेयर बाई 2 x3 बाई 3 x4 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये आसान है, सारे प्लस आ जाएंगे, एक नेगेटिव आएगा, मीन्स सारी नेगेटिव्स है टर्म्स। नंबर 7 टेंजेंट इनवर्स एक्स बी सी से मिला है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 बाई 5 माइनस अप टू सो ऑन। नंबर 8 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। एंड लास्ट हम लिख लेते हैं ई रेज टू पावर साइन एक्स, ये आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस x4 बाई 8 प्लस अप टू सो ऑन। These are the very important formulas given by Maclaurin series. Maclaurin series से एक एक करके we can prove it.